Welcome back to the second session of product life cycle. We have already discussed about the product development stage. We already discussed about what process, what phases the product is passed during the product development stage. We discussed about idea generation, scrutiny of idea, concept design, and how it is being launched, introduced in the market. We already started with the four phases of the product life cycle, that is market introduction stage, product growth stage, product maturity stage, and lastly product decline stage. The first we already discussed about what is market introduction stage. This stage is also called as a product launch stage. An expensive phase, बहुत खर्चे वाला phase है ये, because high costs are associated with design, manufacturing, promotional activities, and inventory to meet the anticipated demand. Other costs include expenses on packaging, labeling. अभी मार्केट में जब हम गुड्स भेजेंगे तो उसका पैकेजिंग, लेबलिंग वो भी तो सब करना ही पड़ेगा, वो भी तो सब अपने को देखना ही पड़ेगा. Yes or no? So we have to look after these things also. Who buys new product? Who are the early adopters of the product? We have to find out the target properly, so we will get the customer in a proper way. We'll get the customer who are our buyers, who are our target people who can purchase the goods with us. आगे बढ़ते हैं. अब मार्केट इंट्रोडक्शन के टाइम पे प्रोडक्ट मार्केट में भेजना है. ध्यान से समझने की कोशिश करना. वी आर सेंडिंग द प्रोडक्ट टू द मार्केट. हम प्रोडक्ट को मार्केट में भेज रहे हैं. सो देयर विल बी टू डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, पुश स्ट्रेटेजी, पुल स्ट्रेटेजी. पुश द प्रोडक्ट, पुल द कस्टमर. Push strategy, pull strategy. Push the product, pull the customer. There are two strategies which we have to apply. Push strategy की पहले बात करेंगे. Marketers focus on product placement and obtaining preferential shelf and floor space. यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रॉपर लेवल पे भेजेगी और अबे जो फ्लोर स्पेस या तो जो जगह पे अपने को अपने प्रोडक्ट को बेचना है वो उसके लिए तैयारी करेगी. वी हैव टू रीच टू द प्लेस ऑफ सेलिंग. द प्रोडक्ट को पुश करो. हमें लोगों तक पहुंचाना है प्रोडक्ट, और वहां पहुंचाना है जहां पे लोग खरीदी करने को आते हैं, जहां पे लोग परचेस करने को आते हैं. तो उनके लिए वो स्पेस क्रिएट करो, शेल्फ क्रिएट करो, फ्लोर स्पेस क्रिएट करो. दैट इज पुश स्ट्रेटेजी. देन कम्स पुल स्ट्रेटेजी. When we speaks about the pull strategy means कुछ भी करके कस्टमर को हमारे कंपनी के लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए तैयार करो. तो create an advertisement that create a buzz for the product. कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट किए जाए, कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट बनाया जाए which will create a buzz for the product. हमारे प्रोडक्ट के लिए वो एक स्पेशलिटी हो, buzz for the product.
एक अट्रैक्शन क्रिएट हो, लोगों को हमारे प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, लोगों को हमारे प्रोडक्ट को लेने के मन से ये they should like to purchase our product. Then you may use the sample, you may use the coupon, and you may use the other promotional techniques. So that is what we require, a push and pull strategy of market introduction. तो प्रोडक्ट को जब लॉन्च करेंगे तो पहले तो हमें मार्केट में प्रोडक्ट को पुश करना है और वेराइटी ऑफ ऑफर देके पुल करना है कस्टमर को. This is what we need to follow in a proper way. I am finding students are not attending the lectures. Those who are not attending the lecture, I am seriously telling you, they are not entitled to give any exams. Because this attendance ka record goes to the university and we are keeping it for our purpose only. Number one, जो अपना नाम प्रॉपरली लिखते नहीं है जूम मीटिंग में वो फंस जाएंगे. नंबर टू, जो लेक्चर अटेंड नहीं करते हैं वो फंस जाएंगे. It is going to be a big problem for those who are not attending the lecture. I am seriously telling you. आपको ऐसा लगता है कि अभी जो टीवाई का एग्जाम होने वाला है वैसा तुम्हारा होने वाला है, तो वैसा नहीं है. आप लोगों का एग्जाम जनवरी तक अगर होगा तो वो कॉलेज में सेंटर लगने के जैसे ही होने वाला है. सो डोंट अंडर द इम्प्रेशन कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करके पास हो जाएगी तुम लोग. And we have the record of everything about your attendance. We will not allow any students to attend the lecture, attend the exams. अब choice is yours. अगर तुम लोगों ने, अभी भी कहता हूँ, क्लास के ग्रुप में मैसेज दे दो. तुम लोगों को अगर ऐसा लगता होगा कि लेक्चर नहीं बैठेगी तो क्या हो जाएगा, but you are making a biggest mistake of your life. Online technology इतना powerful है कि we are getting the everything in recorded, and every day the chat box is downloaded and submitted in the software to get your attendance with the recognition of your name. ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ. Seriously speaking, you people should be aware about it. Otherwise, there is a chance that you may suffer a lot. Okay? So pass the message. I hope by end of the lecture, I need maximum attendance. मैं देखता हूँ ये लेक्चर खत्म होते हैं मुझे कितना अटेंडेंस मिलता है. आपके ग्रुप में मैसेज दे दो. Let me see कितने लोग जागे हैं, सोए हैं, क्या कर रहे हैं. It's a warning to all of you. TY become students. The worst attendance is in the division C. तुम्हारे जितना खराब अटेंडेंस कहीं नहीं है. Worst. So be careful. You will suffer a lot. Okay? Yeah, let's see. So कोई भी प्रोडक्ट को जब मार्केट में लॉन्च करते हैं तो पुश एंड पुल स्ट्रेटेजी के मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं. We'll go with the next part. Yeah. अब मार्केट इंट्रोडक्शन स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? What are the characteristics of the market introduction stage? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक देखो आप, हाई इन्वेस्टमेंट लेस प्रॉफिट. हाई इन्वेस्टमेंट लेस प्रॉफिट. बहुत इन्वेस्ट करना है, प्रॉफिट की अपेक्षा ये लेवल में रखनी है क्योंकि कोई फायदा नहीं है. क्योंकि ये लेवल में अभी तो जस्ट हमें प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, लोग जानते भी नहीं है हमारे प्रोडक्ट को बराबर से, तो हम प्रॉफिट की ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना इज ऑफ नो यूज. सो दिस स्टेज इज हाई इन्वेस्टमेंट एंड लेस प्रॉफिट. ये स्टेज के ऊपर और एक चीज हमें मिलेगी, मिनिमम कंपटीशन. minimal competition, no competition at all.
क्योंकि हम बहुत एंट्री पॉइंट पे हैं, दूसरे एस्टैब्लिश कंपनी है, ऑलरेडी मार्केट में अच्छा खासा बिजनेस करने वाली कंपनीज है, वी आर वेरी न्यू पीपल टू द बिजनेस, so there is not such competition. Then company tries to create acceptance and gain initial distribution. Company tries to create acceptance. देखो पब्लिक हमें क्या रिव्यू देती है, क्या रिप्लाई देती है, हमारे प्रोडक्ट को अभी इंट्रोड्यूस हो चुका है, परचेस करना नहीं करना पब्लिक की इच्छा है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे, जो जनता का निर्णय होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और गेन द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, हो सके उतना प्रॉपर हम लोग प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट सही तरीके से करें। Then company needs both push and pull promotion. हमने पहले भी डिस्कस किया था, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पुश एज वेल एज पुल प्रमोशन। इसके पहले के स्लाइड में हमने देखा था पुश कैसे किया जाता है एंड हाउ टू पुल द प्रमोशन। कंपनी has to target it towards the customer to increase the awareness and demand for the product. We have to target towards the customer to increase awareness. आए टाइम पे तो हमें इतना ही करना है कि जितना हो सके उतना हमें कस्टमर को अवेयरनेस क्रिएट करना है एंड टू क्रिएट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। लोगों को प्रोडक्ट की डिमांड बढ़नी चाहिए। We have to target towards the customer to increase the awareness and demand for the product. Targeted towards channel to increase confidence in the product. Targeted towards the channel. अब channel of distribution क्या होते हैं? कंपनी से लेके, मैन्युफैक्चरर से लेके, डिस्ट्रीब्यूटर से, डीलर से, होलसेलर से, रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर, रिटेलर से लेके फाइनल कंज्यूमर। सो दैट प्रॉपर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को और भी परफेक्ट कॉन्फिडेंस में लेके हमें काम करना पड़ेगा। सो मार्केट इंट्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक इज हाई इन्वेस्टमेंट, लेस प्रॉफिट, मिनिमम कंपटीशन, कंपनी ट्राइज टू क्रिएट एक्सेप्टेंस एंड गेन, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन को संभालना है, अपने को मैक्सिमम बेनिफिट निकालना है। कंपनी नीड्स बोथ पुश एंड पुल promotion strategies, and then targeted towards customer to increase the awareness and demand from the product. It is target to increase the awareness and to increase the demand for the product. Then targeted towards the channel to increase the confidence in the product. Increase the confidence in the product. एक चैनल के माध्यम से हमें लोगों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है कि हम एक परफेक्ट कंपनी है, आपको प्रॉपरली प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए समर्थ है, सक्षम है। ये आपको लोगों तक मैसेज पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं लोगों का आप में विश्वास आएगा। अब दूसरा जो स्टेज आएगा वो है प्रोडक्ट का ग्रोथ स्टेज। यू कैन सी प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज अब इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ग्रोथ स्टेज के बारे में अगर हम बात करें, वंस द अर्ली एडॉप्टर फाइंड एंड यूज अ न्यू प्रोडक्ट, एक बार लोगों ने आपके प्रोडक्ट को खरीद लिया, खरीद के लेके गए, दूसरों ने देखा आपके प्रोडक्ट के बारे में, अदर कंज्यूमर ऑल्सो फील्स कि हमें भी करना चाहिए, लाइकली टू फॉलो, अदर कंज्यूमर आर ऑल्सो लाइकली टू फॉलो यू। अभी क्या है, प्रोडक्ट मार्केट में दिख रहा है, फेमस हो रहा है, द प्रोडक्ट इज विजिबल either in daily life or in the media, everybody is watching the product, and consumers see neighbors and friends using it. देखते हैं कि भाई हमारे नेबर्स, हमारे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये प्रोडक्ट को अभी इस्तेमाल करने लगे हैं, और ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जिसको बोलते हैं ना, वायरल मार्केटिंग, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वी हैव टू वायरल द प्रोडक्ट, वी हैव टू वायरल द न्यूज अबाउट द प्रोडक्ट, यानी कि मैक्सिमम पीपल शुड बी हैप्पी एंड एग्री टू परचेज आवर प्रोडक्ट, इज कॉल्ड एज अ वायरल मार्केटिंग। सो
what happens in this stage, growth stage में introduction हो गया, introduction के बाद now the things started getting viral, visible either in the daily life or in the media, and consumers see neighbors and friends using the product, and for that the viral marketing is important. Viral marketing is important. So growth stage, this is a very important stage. Every stage is important, but this is very important because यहाँ पे आप कितना हाइट पे पहुंच सकते हो ये डिसाइड करेगा आपका आगे का लाइफ. How the things will go ahead, that decided here. That is what the growth stage is all about. वायरल हो रहा है प्रोडक्ट, लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं, लोग एक दूसरे का पसंद देख रहे हैं कि उसने भी खरीदा, मुझे भी खरीदना चाहिए. तो ये आप लोग को यहाँ पे समझ में आएगा. नाउ ये स्टेज इंपॉर्टेंट क्यों है ये यहाँ पे समझेगा. मोस्ट crucial stage for marketer is the product will either catch or fail. Either product will be catched in the market or fail in the market. या तो product बढ़ जाएगा आगे या तो product fail हो जाएगा. If the product is removed from market से product remove हो गया, before it has recovered the cost कवर किए बगैर अगर वो मार्केट से रिमूव हो गया, then it is a very dangerous, and this is called as a bust. B-U-S-T, bust. मतलब this is a position where the company is losing on the product. The whole investment is waste. What exactly? If a product is removed from the market before it has recovered the cost, this is called a bust. So most crucial stage for marketer is the product will either catch or fail. If product is removed from the market before it has recovered the cost, this is called a bust. Okay. So ये स्टेज में हम समझ जाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में फेमस होने वाला है या नहीं होने वाला है. Then comes the next part of it. Okay, how the growth stage is characterized. Growth stage के characteristics क्या है? Growth stage में actual होता क्या है? या definitely investment है, expenditure भी है. देखो characteristics of the growth stage. यहाँ पे प्रोडक्ट इज सक्सेसफुली लॉन्च्ड, आ चुका है. डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोथ इंक्रीजेस. डिमांड भी बढ़ रही है और डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है. हाँ, कंपटीशन भी बढ़ रहा है. इट इज इंक्रीजिंग इन द कंपटीशन बिकॉज अभी लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया. कॉम्पिटिटर अलर्ट हो चुके हैं, उनको समझ में आ गया है कि भाई ये कंपनी आ चुकी है, कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने वाली है. सो कंपटीशन इंटेंसिफाइज हो रहा है. कंपनी माइट इंट्रोड्यूस सेकेंडरी प्रोडक्ट और सपोर्ट सर्विसेज. कंपनी माइट इंट्रोड्यूस सेकेंडरी प्रोडक्ट और सपोर्ट सर्विसेज. यहाँ पे आपको थोड़ा दूसरा प्रोडक्ट का काम चालू करना चाहिए. यू मे इंट्रोड्यूस सेकेंडरी प्रोडक्ट और सपोर्ट सर्विसेज. उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट या तो सपोर्ट सर्विसेज आपको टाइम में ये. सो यू कैन डू दैट. देन बेटर रेवेन्यू जनरेशन एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. बेटर रेवेन्यू जनरेशन एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ये स्टेज में आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, रिटर्न मिल रहा है, आपका बिजनेस आगे जा रहा है. You are trying to develop more and more people, more and more customer. Everything is possible. बरोबर है. So better revenue generation and return on investment. This is what the characteristics of the growth stage. So what are the characteristics? Product is successfully launched, यहाँ पे हो चुका है. डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों बढ़ रहे हैं.
कंपनी कंपटीशन फेस कर रही है, अब इंटेंसिफाई हो चुका है, लोगों को जानकारी मिल चुकी है। कंपनी माइट इंट्रोड्यूस सेकेंडरी प्रोडक्ट और सपोर्ट सर्विसेज। यहाँ पे टाइम है आपको, आपका नया प्रोडक्ट आप साथ में एडिशनल प्रोडक्ट या तो फिर कुछ सपोर्ट सर्विस को लॉन्च करो। देन बेटर रेवेन्यू, अब आपका प्रॉफिट आना शुरू हो रहा है, रेवेन्यू होना शुरू हो रहा है, खर्चा कवर कर रहे हैं आप, यू आर डूइंग मैक्सिमम benefit of the people, and return on investment, you are getting good return on investment. Return on investment मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका आपको रिफंड मिलना शुरू हो रहा है. So that is what the characteristic of this particular stage. So you can see now, after growth stage, the third stage comes is maturity stage. थर्ड स्टेज इज मैच्योरिटी. अब देखो अपने करियर के हाईएस्ट पॉइंट पे आप, टॉप पोजीशन पे हो आप, मैक्सिमम सेल्स है यहाँ पे, मैक्सिमम सेल्स, मैक्सिमम प्रॉफिट, एवरीथिंग you are having at the top most height. That is what the maturity level. As a person, as a human being, also we are in this space somewhere. And also our product comes to this level when the product is achieving a certain target. This is a particular maturity stage. Now, what are the characteristics of the maturity stage? This is a period during which sales of a product increases more slowly, if at all. Sales बढ़ेगा, ग्रोथ के जितना तेजी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन सेल्स बढ़ेगा, लेकिन यू विल इंक्रीज मोर नंबर ऑफ कस्टमर, यू विल इंक्रीज मोर नंबर ऑफ कस्टमर. मार्केटर कीप्स द नेम ऑफ देयर ब्रांड, मार्केटर कीप्स द नेम ऑफ देयर ब्रांड in front of consumer and remind them of the product features and lasting power. यहाँ पे टाइम आ चुका है. जब से पहले इंट्रोडक्शन हुआ तभी हमने जबरदस्त मार्केटिंग किया, उसके बाद ग्रोथ के टाइम पे भी हमने बहुत बार मार्केटिंग किया, बहुत लोगों को जानकारी दी, मैक्सिमम लोगों को अट्रैक्ट किया प्रोडक्ट खरीदने के लिए, मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचे. और मेच्योरिटी स्टेज में भी अपने को लोगों को अपने ब्रांड के बारे में बताते रहना, इमेज के बारे में बताते रहना, उन लोगों को समझाते रहना कि क्या क्या एग्जैक्टली कैसे कैसे हो रहा है. इट इज अवर ड्यूटी. Then comes the features. What exactly we have to do? We have to tell them the features of the product, highlight the features. अच्छा, यहाँ पे स्टेज पे आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपके सक्सेसफुल कस्टमर है ना, वो सक्सेसफुल कस्टमर का रिव्यू जो आता है वो पब्लिक को बता सकते हो. देखो हमारे इतने कस्टमर जो है वो हैप्पी कस्टमर है, दे आर रेडी टू बाय आवर प्रोडक्ट, दे आर लॉयल कस्टमर, दे आर ऑलवेज बाइंग आवर प्रोडक्ट्स ओनली. So that positive effect you can give to the business, which is necessary from the business point of view. So by this stage, ये stage में manufacturer have recouped, very important thing, recoup मतलब cover कर दिया है, the major cost associated with research and development and production. आपका मेजर खर्चा जो है वो आपने इधर पे कवर कर दिया है, रिसर्च से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सब कुछ. The cost associated with distribution is low. अब आपका है ना डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कम है, क्योंकि पहले क्या होता था, अलग अलग जगह पे छोटे छोटे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम होता था. नाउ एट अ टाइम यू आर सेंडिंग इट इन अ लॉट, बिकॉज बहुत सारे लोग आपका प्रोडक्ट खरीद लेते, यू आर डूइंग बिजनेस इन अ लार्ज. ओके, so the distribution is low and company usually make very large profit. Company usually makes very large profit during this stage. ये stage में company अपना profit, maximum profit करने वाली है. Okay, so this is what the maturity stage is all about, जहाँ पे company is at the peak, top position, top business में सबसे आगे अव्वल नंबर पे कंपनी काम कर रही है. मैच्योरिटी स्टेज की अगर कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूं, आप देख सकते हो, पर्सन ऑन द टॉप होल्डिंग द फ्लैग, सबसे ऊपर, सबसे बेस्ट. यहाँ पे अगर इस स्टेज की बात करें तो कंपटीशन इज ग्रेट. ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, द कंपटीशन इज वेरी हाई.
कंपटीशन इज वेरी ग्रेट, प्रोडक्ट इज एस्टैब्लिश्ड, आपका प्रोडक्ट एस्टैब्लिश हो चुका है, आपका प्रोडक्ट एस्टैब्लिश हो चुका है। इन प्रमोशन एक्सपेंडिचर आर लेस, प्रमोशन एक्सपेंडिचर भी इतने नहीं हो रहे हैं, प्रोडक्ट एस्टैब्लिश है, प्रमोशन एक्सपेंडिचर इज लेस, क्योंकि अभी प्रमोशन की जरूरत नहीं, पीपल नोज यू, एवरीबडी नोज यू, एंड नाउ खर्चा प्रमोशन करना पड़ेगा, हेमर करना पड़ेगा, लोगों को याद करना पड़ेगा, लेकिन इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लिटिल ग्रोथ पोटेंशियल, ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा बट थोड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है, चांस, पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड लोअर प्रॉफिट मार्जिन, देयर इज अ पेनिट्रेशन, यानी कि आप हायर प्राइस दे रहे हो, मैक्सिमम प्राइस दे रहे हो, प्रॉफिट मार्जिन चलेगा कम होगा, लेकिन ट्राई टू रीच द मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम लोगों तक, मार्जिन कम है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा है, क्योंकि क्वांटिटी आप ज्यादा बेच रहे हो। द मेजर फोकस इज टूवर्ड, ध्यान से पढ़ना, द मेजर फोकस इज टूवर्ड एक्सटेंडिंग द लाइफ साइकिल एंड मेंटेनिंग द मार्केट शेयर, आपके प्रोडक्ट के लाइफ को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंडिंग द लाइफ साइकिल एंड मेंटेनिंग द मार्केट शेयर, यू नो, कोशिश करना है कि अपना प्रोडक्ट मैक्सिमम लोग परचेस करें, मैक्सिमम लोग परचेस करें। तो मेजर फोकस इज टुवर्ड एक्सटेंडिंग द लाइफ साइकिल एंड मेंटेनिंग द मार्केट शेयर, अपना मार्केट के अंदर शेयर्स खत्म नहीं होना चाहिए। कन्वर्टिंग द कस्टमर प्रोडक्ट टू योर ओन इज अ मेजर चैलेंज इन द मैच्योरिटी स्टेज, आप लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको आपके कस्टमर को मेंटेन रखने, उनको अपने कंपनी का जो भी बेनिफिट है वो उन तक पहुंचता रहे, उसका आपको ध्यान रखना है। सो दोस्तों, अब हम कौन से लेवल पे जाएंगे? फोर्थ लेवल, रिटायरमेंट और डिक्लाइन स्टेज। क्या बोलते हैं जिसको? रिटायरमेंट और डिक्लाइन स्टेज। अभी ये स्टेज वो है जब प्रोडक्ट मार्केट से बाहर निकलने वाला है। एक बात याद रखना, जब भी आपका प्रोडक्ट मार्केट से बाहर निकलने वाला हो, it is necessary that you must be ready with the another product to introduced in the market, यानी आपके एक प्रोडक्ट का डिक्लाइन तो दूसरे प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, ऐसा कुछ आपका तैयारी रहना चाहिए। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अभी तक की आपके मेहनत जो भी है इस बिजनेस के बढ़ाने की, इस प्रोडक्ट को आपकी कंपनी का नाम आगे लाने की, वो फेल हो जाएगी। क्योंकि बिकॉज तुमने नया प्रोडक्ट रेडी किया नहीं और कोई भी उसका बेनिफिट आगे आने वाले प्रोडक्ट को दिया नहीं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू मस्ट बी रेडी विद द अनदर प्रोडक्ट। सो डिक्लाइन स्टेज कौन सा स्टेज होता है? अनेबल टू फाइंड कस्टमर फॉर अ गिवन प्रोडक्ट और अ सर्विस, कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, the product is in the decline stage, क्योंकि अभी आप डिक्लाइन स्टेज पे हो। a temporary decline में भी रिवर्स, थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है तो उसको अटका सकते हैं। you can change little bit by changing the price or a new advertising campaign, by changing a price or creating a new advertising campaign. If efforts are successful, the company may can look to redesign, repackage or reformulate their marketing efforts. The efforts, अगर आप लोग का जो चेंजिंग द प्राइस एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन बराबर नहीं हुआ, आपने कोशिश की मेंटेन करने की लेकिन आप नहीं कर पाए, देन द कंपनी कैन लुक टू, देन आप क्या कर सकते हो? रीडिजाइन, रीपैकेज और रीफॉर्मुलेट देयर मार्केटिंग एफर्ट्स। आप अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को चेंज कर सकते हो, तभी जाके आपको कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा आपके डिक्लाइन फेज को बाहर आने के लिए। सो यू हैव टू फाइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस स्टेज इज डिसीजन पॉइंट स्टेज। इसको डिसीजन पॉइंट स्टेज क्यों कहा जाता है? ध्यान से सुनना।
यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस के ऊपर सोचना पड़ेगा. Now you have to take a decision. You have to finalize what exactly and how exactly you have to go ahead with this. It is a time to decide कि प्रोडक्ट रखना है, नहीं रखना है, कितना रखना है, किधर तक रखना है, कितने लेवल पे रखना है. एवरीथिंग टू बी क्लियर इन दिस पॉइंट नाउ. क्या इस प्रोडक्ट पे और भी खर्चा करके कंपनी को फायदा होगा? क्या ये प्रोडक्ट पे और एक्सपेंडिचर करके हमें कुछ ज्यादा रिटर्न मिल सकता है? That we have to check. So you have to maintain the product in hopes that the competitor will exit. You have to maintain the product in hopes that the competitor will exit. हम ये मान के चलते हैं कि अपन और थोड़ा लड़ते हैं, अपना कॉम्पिटिटर जाएगा. नंबर 2, reduce the marketing support and cost along until no profit can be made. अब ज्यादा मार्केटिंग के ऊपर खर्चा मत करो, मार्केटिंग सपोर्ट और मार्केटिंग कॉस्ट पे खर्चा मत करो until no more profit can be made. अगर ऐसा लग रहा है कि इससे अपने को ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो उसके लिए खर्चा करो, but don't spend much on that if you are not finding any kind of a profit. Discontinue the product when no more profit can be made or there is a successor product. आपका एक सक्सेसर प्रोडक्ट का मतलब मैंने पहले भी बताया, एक प्रोडक्ट ऑलरेडी रेडी है आपका मार्केट में लॉन्च होने के लिए. आपका एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने के लिए रेडी है, सक्सेसर प्रोडक्ट उसको कहते हैं. सो डिसकंटिन्यू ना दिस प्रोडक्ट व्हेन यू फील्स कि देयर इज नो प्रॉफिट. जब आपको पता है कि इससे कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे, कोई मिल रहा है कुछ भी, तो खत्म करो. वेट, डोंट कंटिन्यू, don't go behind this product, don't unnecessarily spend your money behind this product. On the contrary, focus upon the next product to be introduced, that is a successor. Okay, so discontinue product when no more profit can be made or there is a successor product. Modify the product and relaunch it as a new and improved. यहाँ पे और एक आपके पास ऑप्शन है, modify the product, modify the overall product and you can plan to relaunch it as a new and improved product. कुछ नए प्रोडक्ट की तरह उसको लॉन्च करो, कुछ नए प्रोडक्ट की तरह आप लेके आओ उसको. Then see people will like. मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, स्प्लेंडर इतना चला इतना चला इतना चला, जब उसका डिक्लाइन स्टेज आया तो उन लोगों ने डाला स्प्लेंडर प्लस, वापस स्प्लेंडर प्लस, जबरदस्त बिका. जब स्प्लेंडर प्लस का डिक्लाइन आ गया तो उन्होंने तीसरा प्रोडक्ट लाया सुपर स्प्लेंडर. स्प्लेंडर आपने सुना होगा बाइक, सुपर स्प्लेंडर भी चला चला चला, जब उसका डिक्लाइन स्टेज आ गया तो इन लोगों ने लाया स्प्लेंडर NXG. यानी 4 या 5 स्प्लेंडर के नाम से हीरो होंडा कंपनी ने या तो हीरो कंपनी ने अपने मार्केट में जबरदस्त तरीके से बेचा. Are you getting what I mean to say? So you have to understand. The last point is modify the product and relaunch it as a new and improved product. You have to plan accordingly and you have to sell the things accordingly. तो देखो ये लास्ट स्टेज है, यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है. डिसीजन में ऐसा हो सकता है कि वेट करो, वो कंपनी बंद होगी तो अपन कंटिन्यू करेंगे. दूसरा, अभी ज्यादा मार्केटिंग सपोर्ट और खर्चा मत करो क्योंकि कोई अपने को नया प्रॉफिट नहीं आ रहा है. तीसरा, डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट and there is no successor. आपको लग रहा है कि इसको पीछे अभी आगे कोई कंटिन्यू मिल नहीं रही तो छोड़ दो, बंद करो. नेक्स्ट, modify the product and relaunch it as a new and improved product. नया और improved product के हिसाब से उसको modify करके आप ले सकते हो. That you can do from your point of view. So this is what the decline stage. So once again we'll think about what exactly the product life cycle. ये डायग्राम आपको एग्जाम में कंपलसरी बनाना पड़ेगा. ध्यान से देख लो what the diagram is. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बरोबर है. आप देख सकते हो फेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो है 2 फेज है. एक है डेवलपमेंट स्टेज, उधर पे लॉस ही लॉस है.
क्योंकि प्रोडक्ट ही लॉन्च नहीं हुआ है, इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। देन चालू हो रहा है द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब आप इसके अंदर दो कर्व देख सकते हो, सेल्स कर्व एंड प्रॉफिट कर्व। डेवलपमेंट स्टेज में और प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में आप देख सकते हो कि यू आर इन लॉस, बट वंस यू एंटर इनटू द ग्रोथ स्टेज द प्रॉफिट बिगिंस। प्रॉफिट इज हाईएस्ट समवेयर इन द मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी में सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो तभी अपना सेल्स भी सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हैं हम। We are selling highest, we are selling maximum, and the time will come when the sales declines, profit also declines. Sales declines, profit also declines. So see, development stage, introduction stage, growth stage, maturity stage, and the stage will come, the things will finish, over, stop and decline. So a diagram x-axis and y-axis. X-axis represents all the stages of the development. Y-axis represents the sales and profit. This is also known as the sales and profit graph. तो आप देख सकते हो product development stage, product introduction stage, product growth stage, product maturity stage, and product decline stage. These are the 5 different phases of a product life cycle, and we have to explain it with the proper way. I hope you understood the topic. Now finally at the end आपको ये सर्च करना है, सर्वे करना है, आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट दैट यू बिलीव इज एंटरिंग द डिसीजन पॉइंट स्टेज। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो अभी ऐसे समय प्रोडक्ट टाइम पे आ गया है कि अभी वो मार्केट से जाने वाले है। प्रेडिक्ट व्हेन एंड व्हाट मार्केटर माइट डू। predict when and what marketer might do at this stage। इस स्टेज पे मार्केटर क्या करेगा, क्या कर सकता है, that we have to find out। So what is the main reason for discontinuing a product? ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू क्यों होगा, क्यों कर रहे हैं, and why is discontinuing a product a problem of marketer? Why is discontinuing a product is a problem for marketers? और ये डिसकंटिन्यू होना एक ही प्रॉब्लम है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक क्लियरली। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आया है। इफ यू अंडरस्टूड द टॉपिक क्लियरली, से यस और नो इन द चैट बॉक्स। Say yes or no in the chat box. So we are ending the session here. Thank you very much. Again, I am telling you about the attendance. You have to be very careful and very perfect in attending the lecture. Thank you very much.